Welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am a physics expert. Friends, welcome you back to this lecture 2 of chapter units and measurement. तो जो हमारा पहला लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट जिसमें हमने बात किया कि मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द टर्म यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती हैं, फिर उसमें फंडामेंटल क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर कौन कौन से सिस्टम हम यूज़ करते हैं चीज़ों को नापने के लिए। जैसे हमारा CGS है, SI है, MKS है और FPS सिस्टम है, जो कॉमनली यूज सिस्टम है, जिसमें हम अपने लेंथ को, मास को, टाइम को और भी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। Now, today's lecture is all about a very important topic of this chapter, that is your dimensional analysis. जी हाँ, this chapter is almost important with respect to your competitive examinations or your home examinations, because you will get 1 to 2 questions in your home exam or your competitive examination. Now, what are dimensional analysis? सबसे पहली बात, ये एक qualitative analysis होता है. That means we are not dealing with the numerical part or calculations in this analysis. It is a qualitative analysis. Now, what are dimensions? Dimensions are, suppose you have a physical quantity as mass. Then we use a square bracket for dimension and place m over here. So basically, dimensions are denoted by square brackets and we place the corresponding unit inside that thing. Like for length, we have square bracket L, time square bracket T. So these are the dimensions of the very most basic quantities: mass, length, and time. Now suppose take a very common unit as speed. Speed is distance over time. Now if I want to write the dimension of speed, distance is length, time, it becomes L, T को ऊपर ले जाइए, T minus 1, that is LT minus 1. Or you can also write m ka power 0, L T minus 1. There is no term of mass, you can skip the mass, means this thing is also correct and this is also a correct way of writing dimension of speed. So you can skip those terms जिनके exponents या जिनके terms यहाँ फॉर्मूले में मिसिंग होते हैं. उसी तरह velocity है. Velocity is displacement over time. बट डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में ही नापते हैं, मतलब ये भी लेंथ है अपॉन टाइम है. तो वेलोसिटी का भी जो डायमेंशन है वो LT-1 लिखा जाएगा आपका. ये एक और लेते हैं हम लोग, मोमेंटम. नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो डायमेंशन क्या बन जाएगा? मास क्या हो गया? kg. स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. तो डायमेंशन में पहले हम मास देखते हैं. तो आप देखिए, जो मास का टर्म है kg, उसका पावर कितना है? 1 है. तो हम यहाँ लिखेंगे m का पावर 1. फिर लेंथ क्या है? मीटर का पावर कितना है? 1. तो l का पावर 1. और टाइम क्या है? टाइम इज सेकेंड्स और सेकेंड का पावर कितना है? -1. सो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज mL-T-1. तो इसी तरह we have a term known as dimensional formula. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसका जो जनरल फॉर्म है दैट इज m⁴A, l⁴B and t⁴C. This is the general expression of writing the dimensional formula of any given physical quantity. M stands for mass,
L stands for length and T stands for time. A, B, C are its respective exponents. जैसे मोमेंटम में A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू -1 है। और जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे आपके दिमाग में आ रहा हो कि MLT ही क्यों है, बिकॉज ये हम सब ने एक कन्वेंशन तरीके से माना हुआ है कि ऐसे ही लिखा जाएगा ये। So to have uniformity in measurement in data, we have a convention to write dimension as M, L and T. हम ये convention को change नहीं करेंगे इसको अंदर। So this is your dimensional formula of writing any physical quantity. अब इसके बाद हम बात करते हैं next we have principle of homogeneity. Principle of homogeneity. Now what is principle of homogeneity? Suppose we have two physical quantities x1 is equal to x2. तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं x1 और x2 हैं और मैंने बोला कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। तो मान लीजिए कि x1 का डायमेंशन लिखा m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c और x2 का लिखा m2 का पावर x, l2 का पावर y, t2 का पावर z। अब अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बराबर हैं तो उनके क्या होंगे, उनके यूनिट्स भी बराबर होंगे। मान लीजिए दोनों स्पीड और स्पीड है तो यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी तभी बराबर होंगी जब दोनों का नेचर सेम होगा। जैसे मैंने लिखा 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, तो है दोनों लेंथ, तो दोनों तरफ आपका फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होगा। जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे तो उनके यूनिट्स भी सेम होंगे। अगर यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे और अगर डायमेंशन सेम है तो उनके रेस्पेक्टिव मास, लेंथ और टाइम के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तभी जाके दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बराबर हो पाएंगी। Therefore, if the two physical quantities are equal, then by principle we can conclude that A is equal to X, B is equal to Y and C is equal to Z. This is your principle of homogeneity. क्या इसका मतलब हुआ कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी इक्वल होंगे और उनके इंडिविजुअल जो फिजिकल टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आपने थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने आपसे बोला कि जरा भैया 2 kg में 4 मीटर जोड़ के दिखाओ, तो आप कहोगे सर आप क्या पागल हो गए क्या, आप मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो 2 kg में 4 मीटर जोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जरा 2 kg में 2 ग्राम जोड़ो, आप जोड़ सकते हो। भले ही आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल यू कैन ऐड 2 kg to 2 grams because both are of same nature, same unit and same dimensional formula. So principle of homogeneity is applicable on those physical quantities which are of same nature. लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, मास में मास जुड़ेगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा, है ना। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी बराबर होंगे और उनके रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे यहाँ पे हमारे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें हमारे कुछ यूजेस हैं कि कैसे हमें इन डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करना होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट applications of dimensional analysis। तो पहला इसका तो बड़ा आसान सा एप्लीकेशन है। इट इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन।
or to check dimensional consistency of an equation. जैसे बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये क्लास 9 का पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे s मेरा डिस्टेंस था, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। तो s क्या है? s यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन हो गया l का पावर 1 हो गया। फिर u क्या है आपका? स्पीड है या वेलोसिटी है, इट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब l t माइनस 1। फिर हमारा यहाँ पे टाइम है, टाइम क्या बन जाएगा? t। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि ये एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो हम यहाँ पे नंबर्स को यूज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एल टी माइनस 2। फिर अगला टी स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर एल। फिर यहाँ पे आइए, इसमें देखिए एक t माइनस 1 है, एक t प्लस 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ l बचेगा प्लस टी स्क्वायर है और t माइनस 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 0 बन जाएगा, तो यहाँ भी सिर्फ l बचेगा। अगले स्टेप में ये लिखने की गलती मत करिएगा। क्यों? मैंने फिर से बोला है, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट मीन्स आप यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते हो। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का जो हमने निकाला है कि लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगा, टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हम एल्जेब्राइक एडिशन नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली स्टेटिंग दैट टू ऑब्टेन लेंथ एज आंसर आपको लेंथ में लेंथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो LHS है उसमें लेंथ आ रहा है और आपके RHS में दो टर्म्स हैं, वो भी लेंथ और लेंथ है, मतलब ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज लेंथ में लेंथ जोड़ने पे आपको लेंथ ही मिल रहा है। सो वी कैन से दैट LHS का डायमेंशन is same as RHS का डायमेंशन, so the equation is dimensionally correct। ये हम यहाँ इससे इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है यहाँ पे हमारी। अब इसके बाद हम दूसरे एप्लीकेशन की मूव करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी है हमारी, वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट की है, उसको हम देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ one system of units into another। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो हमको ये निकालना है कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है। नाउ व्हाट इज न्यूटन? बेसिकली हम यहाँ पे MKS से CGS में जा रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग फ्रॉम MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम। तो ये तो ठीक है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन करते कैसे हैं? एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी x1 है और इसमें यहाँ पे x2 है। सिस्टम 1 में भी फोर्स है, सिस्टम 2 में भी फोर्स है, मतलब न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम का फोर्स है, डाइन जो है वो CGS सिस्टम का फोर्स है आपका, बट हैं दोनों फोर्स। तो और आपको अगर पहला लेक्चर याद हो, मेजरमेंट क्या होता है? x इज इक्वल टू n टाइम्स u होता है, तो x1 क्या बन जाएगा? n1, और डायमेंशन लिखते हैं m1 का पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c। सिस्टम 2 में n हमारा होता है मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया n2, m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c। तो देखिए हमको यहाँ पे n1 पता है,
डायमेंशन पता है सिस्टम 1 का, हमको n2 नहीं पता है और डायमेंशन पता है सिस्टम 2 का। तो बेसिकली हमको यहाँ पे n2 निकालना है, अगर n1 निकालना है तो आप अपनी इक्वेशंस को उस हिसाब से बदल लीजिएगा। तो n1 क्या बन जाएगा, m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर c, t1 बाई t2 का पावर c। तो अगर n2 निकालना है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, अगर n1 निकालना है तो n2 m2 बाई m1 का पावर a, l2 बाई l1 का पावर b, t2 by t1 का पावर c। This is the method how do you find the value of n1। तो हमें अपने सवाल में n1 दिया है और हमको यहाँ पे हमको n1 भी पता है, तो अगर इसको हम लिखें दिस विल बी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो हमको n1 पता है, u1 पता है, u2 पता है, हमको n2 निकालना है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स, and force is what, meet mass into acceleration, mass into acceleration, that is kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखते हैं, पहला टर्म होता है मास का, तो इस यूनिट में kg का पावर कितना है, 1 है, तो हमने उसको यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर l होता है लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, उसका पावर कितना है, 1 है। और फिर होता है t होता है सेकेंड्स, तो यहाँ पे पावर कितना है, -2। तो डायमेंशन क्या बन गया, एम एल टी माइनस 2। फॉर्मूले में देखिए, m का पावर a है, l का पावर b है और t का पावर c है। कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे m का पावर कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू बन गया 1, b का वैल्यू 1 बन गया 1 और c का वैल्यू बन गया -2। सो ऑन कंपेयरिंग हमने a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो n2 बन जाएगा n1, m1 बाई m2 का पावर a होता है तो 1 कर दीजिए, l1 बाई l2 का पावर b है तो 1 कर दीजिए और t1 बाई t2 का पावर c है तो -2 कर दीजिए। n1 कितना, 1 न्यूटन, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। अब आती बारी m1 और m2 की। तो m1 क्या है, सिस्टम 1 का मास। सिस्टम 1 कौन है, न्यूटन है, और सिस्टम 1 में क्या है, मास हमारा केजी में होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 kg। लेकिन केजी हमने लिखा है यहाँ पे, और सिस्टम 2 में मास क्या है, सीजीएस में है 1 ग्राम पावर 1। सिस्टम 1 में लेंथ क्या है, 1 मीटर, और सिस्टम 2 में क्या है, 1 सेंटीमीटर पावर 1। दोनों में टाइम सेकेंड्स और सेकेंड्स ही रहता है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम MKS से CGS में जा रहे हैं, मतलब हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रहे हैं। दैट मीन्स हम सिस्टम 1 की वैल्यूज को सिस्टम 2 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 kg ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। मीटर इन सीजीएस इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1। ये 1 बन जाएगा -2। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो ये बन गया 1 इंटू 1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 100, तो n2 की वैल्यू बन जाएगी 10 की पावर -5। Therefore we can write 1 Newton is 10 raised to power 5 dyne। So this is the method how you obtain the value of 1 Newton in terms of dyne, or how you convert one system of unit from one to another। अभी हम सवाल नहीं ले रहे हैं, अगली जो हमारी वीडियो होगी इट विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसकी आप चिंता ना करें कि हमने सिर्फ एक ही सवाल टेकअप किया और सवाल क्यों नहीं कराए गए हैं। अभी हम सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या क्या थ्योरी हम पढ़ सकते हैं। बाकी आई विल गिव यू एन एंटायरली न्यू वीडियो ऑफ ओनली न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। अब आइए बात करते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन की। लास्ट एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है बेसिकली
इसमें हमें करना क्या होता है, वी हैव टू बेसिकली फाइंड ऑब्टेन रिलेशन among various physical quantities। तो अभी हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, बिकॉज अभी हमने बहुत सारे टर्म्स नहीं पढ़े हैं, तो हमें उन सबके डायमेंशंस नहीं पता है यहाँ पे हमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सवाल लिया, हमने इसने बोला है कि एक मूविंग पार्टिकल है और उसका जो वेवलेंथ है, तो ये टर्म आपका 9th में पढ़ा हुआ है, उसका जो वेवलेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन मास, velocity एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन मैं आपको बता दूंगा, ये आप ओवर द टाइम आपको उसका डायमेंशन याद हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे क्या है, सवाल कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो देखिए स्टेप वन कैसे होगा, स्टेप वन कैसे करना है, वी हैव टू राइट एन इक्वेशन। तो इसने बोला है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये तीन वेरिएबल है जिन पे ये लैम्डा डिपेंड कर रहा है। अग फिर क्या करना है, वी हैव टू रेज these quantities to respective power a, b and c। Step 2, formulate the equation तो is equal to some constant time m का power a, v का power b, h का power c। Step 3, दोनों तरफ डायमेंशंस सबके लिख डालिए। वेवलेंथ सिर्फ लेंथ होता है ये, तो यहाँ पे हो गया l का पावर 1। कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं पता है, इसको हम छोड़ देंगे। अगला टर्म क्या है, मास, मास इज ओनली m, कितना पावर है, पावर a। अगला क्या है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, lt माइनस 1 पावर b। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन याद कर लीजिए, ml स्क्वायर t माइनस 1 का पावर c हो गया। स्टेप 4, अब m के टर्म्स सब एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे m का पावर a है और m का पावर c है, तो m बन जाएगा a प्लस c बन जाएगा। l के टर्म कलेक्ट करिए, l का एक पावर b है और l का एक पावर 2c है, तो b प्लस 2c। अगला टर्म टाइम का है, टाइम कितना है, एक माइनस बी है एक माइनस सी है, तो माइनस बी माइनस सी। स्टेप 5, हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर दोनों तरफ सेम इक्वेशंस हैं तो दोनों डायमेंशन भी इक्वल होंगे, और अगर डायमेंशन इक्वल हैं तो दोनों के एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। एलएचएस में देखिए, एलएचएस में मास नहीं है, आरएचएस में मास क्या है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि एलएचएस में m का पावर 0 है और t का पावर भी 0 है। l का पावर कितना है, 1, तो अगला क्या बन जाएगा, b प्लस 2c एज 1। टाइम का टर्म 0 है, तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका। सो स्टेप 6, नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या बन गया हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस b माइनस c इज इक्वल टू, सॉरी, b प्लस 2c इज 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको 1 मार्क कर लें, इसको 2 मार्क कर लें और इसको 3 मार्क कर लें, सो ऑन एडिंग 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 3 को ऐड करिए, वी विल गेट c इज इक्वल टू 1। अब पुट c इज इक्वल टू 1 इन 3, क्या बन जाएगा, माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा आपको। एंड पुट c is equal to 1 in equation number 1, तो c is equal to माइनस a, सॉरी, और a is equal to माइनस c, तो a बन जाएगा माइनस 1। देयरफॉर हमें वैल्यूज क्या मिल गई, a is equal to माइनस 1,
b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। ये हमारी वैल्यूज हैं जो हमने इससे ऑब्टेन की हमने। a की वैल्यू -1, b -1 और c इज इक्वल टू 1। स्टेप 7, ए बी सी की वैल्यू आप स्टेप 2 में पुट करेंगे। सो पुट ए बी एंड सी इन स्टेप 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के एम का पावर -1, वी का पावर -1 एंड सी का पावर एच का पावर 1। तो लैम्डा बन जाएगा के टाइम्स एच अपॉन एम वी, और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h by mv. So by using dimension analysis, we are able to obtain a relation between the given quantity and its depending variables. So this is the required formula for the given condition। जो भी हमको यहाँ पे कंडीशन दे के रखी हुई है कि हमें कैसे एक रिलेशन निकालना है बिटवीन वेवलेंथ एंड ऑल इट्स गिवन डिपेंडिंग फैक्टर्स। तो इस सेगमेंट को फिर से देखिएगा, स्टेप हमें कैसे फॉलो करने हैं। आपको ये स्टेप्स किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज गो थ्रू ऑल द स्टेप्स क्लियरली, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। बाकी मैं फिर आपसे कहूँगा, आप इसमें डरिए नहीं कि सवाल मैंने नहीं कराए हैं। मैं आपको अलग से पूरी एक वीडियो दूंगा जिसमें सिर्फ सवाल ही सवाल मैं आपको करके दूंगा कि कैसे अलग अलग सवालों को अप्रोच करते हैं, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस विच हैव केम इन योर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन, जिससे आपको एक क्लियर इंसाइट मिल जाएगा कि हाँ, कंपटीशन में इस चैप्टर से हर टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बस आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, और कभी भी आपको कुछ डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क in our comment section. Please do write to us, please do mail us, follow us on our Instagram page. आपके कोई डाउट्स हैं आप कहीं भी हमको लिख के दीजिए, हम आपको उसको रिप्लाई बैक करेंगे। बाकी जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज वॉच द फर्स्ट लेक्चर, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर हमसे ना आप नए जुड़ रहे हैं पहली बार, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Till then, take care of yourself, and in the next lecture we will take up error analysis। उसके बाद फिर हम सिर्फ सवाल ही सवाल करेंगे, एक वीडियो एरर की और एक वीडियो डायमेंशंस की। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।